کئی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ چوچکھے نواحی گاؤں 8-1A میں خاوند نے مبینہ طور پر بیوی کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ آسیہ بی بی 8 بچوں کی ماں تھی۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے مشتاق احمد بھٹی سے، جو اس وقت متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مشتاق، انہوں نے ہمیں اندر بند کر کے ان دونوں نے مل کے میری امی کو مار دیا۔ افسوس والی بات ہے کہ قاتل نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد جو رنگ دیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین، قاتل اتنا شاطر تھا کہ اس نے قتل کرنے کے بعد اپنی بیوی کو گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ جب یہ واقعہ پولیس کے نوٹس میں آتا ہے تو پولیس فوری طور پر حرکت میں آتی ہے۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو ملزم تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ صدر رینالہ خورد میں مقدمہ نمبر 57/26 رجسٹرڈ ہوتا ہے، جس کے مدعی ہیں محمد اسلم ولد عبد المجید۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب جی، ساری تو گزارش یہی ہے بھی سانو انصاف ملے۔ اسی 2-4 بجے اگے بھی آئے ہیں، ہاتھ جوڑے نے، ترلے کیتے نے بھی تو شادی کرا لا، تو باہر سائڈ تے ہو جائے تو بچے نو رہن دیو، اسی کتنے ٹھیک کے لے جاواں گے۔ فی الحال جی 2-4 بجے نمبردار بھی نال سی، انہیں بھی قرآن چکائے نے، انہیں آخیا جی ٹھیک ہے تسی چلے جاؤ۔ اسی دھیاں نو ویکھ کے چلے جاندے سی۔ اج سانو ملی ہے، مری ہے تے دوویں بندہ، جنانی بھی نال ہے تے بندہ بھی نال ہے، اتوں چوڑیاں بھی ملیاں نے، وہ بھی میچ ہو گئے نے، تیرے نال ہی ہے، سانو انصاف مل جائے۔ روندے تو بعد یہ ہے بھی سانو یہ ہے بھی آنے چھٹ جان گے۔ اسی آنا سانو انصاف ملے، ساڈی مر گئی ہے، اسی بھی مر گئے تو صاحب جی سانو انصاف ملے، ساڈی گزارش ہے۔ عرض ہے تہاڈے میری ماں پہ انہوں نے کیا بہت ظلم، دونوں نے میری ماں پہ بہت ظلم کیا، وہ نے ہمیں سے میری ماں کو مار دیا۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں میری ماں کی انصاف چاہیے۔ اللہ پاک نے مرد کو بہت مضبوط بنایا ہے، اور وہ مرد تب روتا ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بھائی اپنے بہن کے اس دکھ اور صدمے میں رو رہا ہے، اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور التجا کر رہا ہے انصاف کے لیے کہ خدارا مجھے انصاف دیا جائے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اب ان 8 بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج ہاتھ اٹھائے انصاف کی دعائیاں کر رہے ہیں۔ ترلے کرتی کہ تجھے مار دے گا، آپ چلی جا، ساڈے ساتھ چلی جا۔ میں اس کو کیا طلاق دے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، طلاق دے دے، سانو کوئی مسئلہ نہیں، اسی لے جاواں گے۔ بس یہی کہندا سی میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاواں، قسم گزارش ہے سانو انصاف چاہیے۔ ساڈی بہن دے چھوٹے چھوٹے بچے رو کے یہ متاثرہ فیملی دعائیاں کر رہی ہے، اپیل کر رہی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ خدارا ہمیں انصاف دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان مشتاق بھٹی کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔ سوات سے ایک خوش آئند خبر ہے، جہاں تحصیل کبل کے علاقے میں مقامی گرجے کی سنجیدہ کوششوں سے برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ روایت انصاف کے اس عمل نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سوات کا جرگہ نظام آج بھی معاشرتی مسائل کے حل کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سوات سے ہمارے نمائندے لال شیر خان کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل کبل کی علاقہ مامڈیرئی میں امن بھائی چارے اور روایتی اقدار کی ایک روشن مثال سامنے آئی ہے، جہاں مقامی عمائدین اور معززین پر مشتمل جرگہ کی کاوشوں سے پرانی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ فریقین کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازع اور کشیدگی کے نتیجے میں 7 قیمتی جانیں ضائع ہو چکے تھے، جس سے علاقے کا ماحول سوگوار اور امن کی فضا متاثر ہو رہی تھی۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے علاقائی مشران نے جرگہ طلب کیا، جہاں دونوں فریقین نے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اعلان کیا۔ صلح کے بعد جذباتی مناظر دیکھنے میں آئی، جہاں دونوں خاندانوں کے افراد نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر دشمنی ختم کرنے اور آئندہ امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا عہد کیا۔ ہم نے 3 سال جدوجہد کی، لیکن ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے جرگہ میں، نوید شاہ اللہ اور رحمت علی اور سردار خان رکیٹ، یہ سب بہت حوصلے والے تھے۔ اس مسلسل جدوجہد میں کامیابی ڈالی اور آج یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس موقع
पर असिस्टेंट कमिश्नर कबल ने कहा, बहुत पुरअमन है और आज ये अमन की जो एक मिसाल कायम हुई है दो ग्रोहों के दरमियान मुसालहत की सूरत में, वो एक बहुत बेहतरीन और आला मिसाल है। उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाद का कहना है कि जरगे के जरिए सुलह का ये इकदाम इलाके में पायदार अमन के क़याम में अहम पेशरफ्त है और पुलिस क़याम अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेंगी। कामयाब हो गया है और दोनों फरीकैन ने जो है अपने एक दूसरे को फी सबीलिल्लाह माफ किया है, तो ये एक बड़ा खुशाइन अमल है और इसमें मैं ओवरऑल सवाद के जितने भी मशरान है, कम्युनिटी है, बड़ी फाल है और वो ये सवाद को पुरअमन रखने में इनका बड़ा अच्छा किरदार है। सवाद में होने वाली ये सुलह उस अमर की वाज़ेह मिसाल है कि रिवायती जरगा निज़ाम आज भी मुआशरती हम आहंगी और पायदार अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ एक तनाज़े का खात्मा है बल्कि आइंदा नस्लों के लिए अमन और भाईचारे का पैगाम भी है। कैमरा टीम के साथ लाल शेर खान, NTN न्यूज़ सवाद। ननकाना साहब में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 1000 किलो मुज़र सेहत मुरब्बा और अचार तल्फ, संगीन खिलाफ वर्जियों पर यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी, 35,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से उसामा बिर्क। ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 किलोग्राम नाकस और मुजरे सेहत मुरब्बा और अचार तल्फ कर दिया। कार्रवाई DG फूड अथॉरिटी आसम जवेद की हदायत पर जालसाज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत की गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक छापे के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुरब्बा और अचार की तैयारी और स्टोरेज के लिए नॉन फूड ग्रेन बर्तन और ड्रम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कीड़े और फंग से ज्यादा फलों और सब्जियों से अचार और मुरब्बा तैयार किया जा रहा है। गाजर, आंवला और सेब समेत मुख्तलिफ एशिया की रंगत स्याह और कीड़े लगे हुए हैं। यूनिट में इंतहाई बदबूदार और गैर सेहत बख्श माहौल था, जबकि सफाई के नाकस इंतजामात, लाजमी रिकॉर्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट और वर्कर की ट्रेनिंग भी मौजूद नहीं थी। कार्रवाई के दौरान गैर मेयारी मसनूआत को मौका पर ही तल्फ कर दिया, जबकि यूनिट की प्रोडक्शन बंद करके 35,000 रुपया जुर्माना भी आयद कर दिया। गैर मेयारी मुरब्बाजात ननकाना भर में फरोख्त किए जाने थे। ज्यादा मुनाफा की खातिर आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरा मैन टीम के साथ उसामा बिर्क, NTN न्यूज़ ननकाना साहब। अभी आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर चिनियोड आयशा रिजवान के जनाब नगर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को 2 दिन की वार्निंग के साथ मौके पर ही हदायत जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट पर। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का चिनाब नगर का तफसीली दौरा। उन्होंने मॉडल रेरी बाजार, मुस्लिम कॉलोनी और साहिवाल रोड का विजिट किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि किसी भी इलाके में कोई भी मेन होल ढक्कन के बगैर नहीं होना चाहिए और तमाम ओपन ड्रेन को कवर करवाया जाए और इलाकों में मौजूद गंदे पानी के जोड़ों को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और पानी की निकासी को बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वाजे किया कि 2 दिन के अंदर अंदर तमाम अमूर को बेहतर करें और मैं दोबारा विजिट करूंगी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मॉडल रेडी बाजार को भी चेक किया गया और अशिया के रेट्स और म्यार और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया, डॉक्टर अनस सईद और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEOs भी हमरा थे। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़ चनाब नगर। डोरकोट में गाड़ियों में गैस रिफिलिंग का काम धड़ल्ले से जारी है। सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारे गैस रिफिलिंग को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देने लगे। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मंजूर अल हसन सियाल से। जी मंजूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस रिफिलिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस के इदारे खमोश तमाशाई बने हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ हादसा भी हो चुके हैं। चंद दिन पहले जांगवे में एक हादसा पेश आया था। मेरे साथ एक शहर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। बदकिस्मती हमारे शहर की ये है कि यहाँ पर जब तक कोई बड़ा सानिया ना पेश है ना, तब तक यहाँ से कोई सबक नहीं सीखा जा सकता। यहाँ पर शोरकोट कैंट रोड ले लें, आप पत्तन रोड ले लें, मेन लारी अड्डा हो गया, मुख्तलिफ शाहरा है जहाँ पर ना सरेआम LPG की गैस है ना, जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिफिल करते हैं, जबकि इसके दौरान अक्सर गाड़ियों में सवारियां बैठी रहती हैं और उनकी जानों को भी खतरे में डाल दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम अपनी ट्रैफिक पुलिस के किरदार की बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और जो सिविल डिफेंस है, इन किरदारों के ना जो किरदार इंतहाई मशकूक हो गए हैं। यहाँ पे 14 किलोमीटर का सफर करके जो गाड़ी है ना, शोरकोट के एरिया से गुजरने के बाद, शहरी एरिया से गुजरने के बाद जो मोटरवे इंटरचेंज M4 पर पहुंचती है, इसके दौरान मुतअद्दिद नाके तो ट्रैफिक पुलिस लगाती है, लेकिन LPG गाड़ियों पे कोई काबू नहीं करती। जब अफसरान की जानिब से कोई अहकाम सख्त आते हैं तो 1-2 गाड़ियों के चलान करके, 1-2 गाड़ियों के मुकदमा दर्ज करके या
खाना पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर से वही गैर कानूनी जो रिफिलिंग का धंधा है वो फिर चल जाता है। हमारा डीसी जंग से, डीपीओ जंग से यही मुतालबा है कि खुदारा हमारी अवाम पे रहम करे, इससे पहले कि कोई बड़ा सानिया पेश आ जाए, जल्द से जल्द ये गैर कानूनी जो रिफिलिंग है इसको बंद करवाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शहर में ये रिफिलिंग का सिलसिला अरूज पर जा रहा है, जिसपे इदारों की जानिब से कोताही बरती जा रही है। मुस्लिम ममालिक पर इजरायली और अमरीका के जुल्म बर्बरियत पर चिनियोट में रैली का इनेकाद किया गया। इजरायली और अमरीका को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा, शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिनियोट से कैसर वीन से। जी बिल्कुल, इसराइल की जो है ईरान के अंदर जुल्म बर्बियत के खिलाफ जो है रैलियों का सिलसिला वो बिल्कुल जारी है, जबकि चिनियोट के अंदर जो है रैली निकाली गई और इसराइल की जो है जहरियत और जुल्म पर जो है खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की। इस वक्त हमारे साथ सियासी रहनुमा मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा सर, आप क्या कहेंगे। जी, आज का ये जो एहतजाजी प्रोग्राम था, ये तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आशिक हुसैन बुखारी उनके जेर एहतमाम ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें हम अपने बिरादर इस्लामी मुल्क को ये बता देना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी अक़वाम आपके साथ है। इस वक्त शैतानी इत्तेहाद सलासा अमेरिका, इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान में जो जुल्म बर्बरियत ढा रहे हैं और पूरे 57 इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें सबसे पहले वाहिद ईरान है, जो पूरी दुनिया की नजरों में जो शैतान इबलीस अमेरिका की नजरों में खटकता है, और उसने ईरान में फसाद बर्पा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरानियों की यकजहती के साथ वो उसमें नाकाम हुआ। बिल्कुल, ईरान के साथ पाकिस्तान शाना बशाना खड़ा है। इस वक्त हमारे साथ दीगर मुकर्ररीन मौजूद है, उन जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा सर, आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान के शिया सुन्नी ये इरादा करते हैं कि ईरान या फलस्तीन या लबनान या दुनिया के किसी भी खित्ते में जहाँ कहीं भी मुसलमानों का नुकसान होता है, वहाँ उनकी रहनुमाई और उनकी सरपरस्ती के लिए अयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मैदान अमल में है। बिल्कुल, यहाँ पे मुकर्ररीन का कहना है कि ईरान और जो है फलस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं और फलस्तीन और अमेरिका को न कभी तस्लीम किया है और न ही करेंगे। जी कहते हैं तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती। ननकाना साहब के सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार बूटा सिंह ने इस कहावत को अमली जामा पहनाकर इल्म और आगाही की एक नई मिसाल कायम कर दी। 57 साल की उम्र में MSc मास कम्युनिकेशन की डिग्री मुकम्मल कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब के रहायशी और गुरुद्वारा खियारा साहब में बतौर ग्रंथी खिदमत सर अंजाम देने वाले सरदार बूटा सिंह ने 57 वर्ष की उम्र में लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MSc मास कम्युनिकेशन की डिग्री मुकम्मल कर ली। सरदार बूटा सिंह ने 45 साल की उम्र में तालीम का बाकायदा आगाज किया और लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैट्रिक FA और BA करने के बाद मास्टर की डिग्री हासिल की, जो इनकी मेहनत, अज़म और लगन का मुंह बोलता सबूत है। सरदार बूटा सिंह की शानदार कामयाबी पर रीजनल डायरेक्टर लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेखुपुरा रीजनल फयाज खान सराइकी इनके घर पहुंचे और इन्हें मुबारकबाद दी। इसी मौके पर उन्होंने वाइस चांसलर लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद और डायरेक्टर रीजनल सर्विस डॉक्टर मलक तोकीर अहमद खान की जानिब से भी नेक तमन्नाओं और मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया। सरदार बूटा सिंह की बेटी समरीन जीत कौर, जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन ननकाना साहब में लाइब्रेरी साइंस की लेक्चर है, का कहना है कि इन्हें अपने वालिद की कामयाबी पर फख्र है, जिन्होंने इस उम्र में आला तालीम मुकम्मल करके मसाइल कायम कर दी। पाकिस्तान में इन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और तालीम समेत हर शोबे जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके मैसर हैं। कैमरामैन मियाँ मोहम्मद असलम के साथ मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़ ननकाना साहब। वादी सून में अवामी मसाइल के हल के लिए पुलिस मुतहरिक DPO खुशाब डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने वादी सून का रुख कर लिया। तहसील ऑफिस नौशहरा में खुली कचहरी के दौरान शहरियों की शिकायत पर मौके पर ही एक्शन ले लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे अजीज़ अहमद अवान से। जी अजीज़, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, DPO खुशाब डॉक्टर अमारा शिराजी वादी सून की आवाम के दरमियान पहुंच गयी। तहसील ऑफिस नौशहरा में मुनक्कदा खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पुलिस सरबराह के सामने रखे। डॉक्टर अमारा शिराजी ने साइलिन की शिकायत फर्दन फर्दन सुनी और इंसाफ की फराहमी के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर SHO थाना नौशहरा ज़ुहैब हसन गोंदल भी DPO के हमरा मौजूद थे। DPO खुशाब ने SHO थाना नौशहरा को इलाके में अमन अमान बरकरार रखने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की। उन्होंने किया कि पुलिस अफसरान शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहरियों ने DPO खुशाब के इस अवामी अंदाज को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि SHO ज़ुहैब गोंदल की सरबराही में नौशहरा पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद बेहतर इक़दामात करेगी। जी
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सक्खर में सिविल डिफेंस सक्खर के ज़ेर एहतमाम रेस्क्यू, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और CPR के मौजू पर एक मुफीद और मालूमाती तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी टाउन चेयरमैन तारिक चौहान थे। देखते हैं इमरान मुगल की ये रिपोर्ट। महफूज सक्खर के हवाले से नहायत मुनफरिद, आसान और अमली अंदाज में तरबियत फराम की। तरबियत के दौरान तलबा व तालबात की एमरजेंसी की सूरत में फौरी रद्द अमल, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, आग लगने की सूरत में एहतियाती तदाबीर और CPR की बुनियादी असूलों से मुकम्मल आगाही दी गई। सिविल डिफेंस सक्खर की सिंध भर में कारकर्दगी सबसे नुमाया, शानदार और मिसाली है। सबसे पहले तो इस तरह सक्खर में गुल प्लाजा हादसे के बाद एक्शन लिया गया है और अदर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि अपनी अपनी बिल्डिंग के ऊपर इस तरह के मटीरियल को प्रोवाइड करें जिससे जो नुकसान होते हैं, जैसे फायर एक्सटेंशन मेन सामान है। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो इसका ऑर्डर तो पास हुआ है, फायर एक्सटेंशन का सामान मौजूद होना चाहिए, इसकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसके लिए पूरी टीम बननी चाहिए, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो उस सानिया को देखने के बाद मैंने ये सोचा और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी यही थी कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और तमाम जितने भी हमारी बिल्डिंग्स हैं स्पेशली वहाँ पर ये सारा मटेरियल होना चाहिए और ये मटेरियल बगैर ट्रेनिंग के फजूल है। मैंने पहले दिन ही कोशिश की अपनी कॉलेज को सेव करने के लिए तमाम चीजें लेकर आया हूँ। प्लाजा के बाद कमिश्नर सक्खर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी साहब और डिप्टी कमिश्नर नादिर शहजाद खान साहब की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स, तजारती मराकज में हम ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये बताया कि हम जो घर में बिजली होती हैं, जैसे गैस चलती है, तो हमें मतलब कैसे उसको करना चाहिए। तरबियत तलबा व तालबात के लिए वक्त की अहम जरूरत है। आखिर तरबियत याफ्ता उस्तादान और तलबा व तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन हसन राजपूत के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज सक्खर। महबूबाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम तहसील घड़ी खैरों की जानिब से बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। यूनियन कौंसिल खुदाबाद और मौला बख्श बरोही में साफ पानी की फरहमी का मुतालबा किया गया। तफसीलात जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील गढ़ी खेरों की जानब से बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली का आगाज जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर से हुआ जो अमरोटी चौक तक पहुंची, जहां कारकुनान ने धरना दिया। उस मौके पर जनरल सेक्रेटरी असदुल्लाह हैदरी, इलियास बिरोई और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनियन काउंसिल खुदाबाद के मुख्तलिफ देहात और मौला बख्श बिरोई में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहरियों को फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रहनुमाओं का कहना था कि इलाके में तालीम की सहूलियात न होने के बराबर है। स्कूल की इमारत तामीर की जाए, जबकि टूटी फूटी सड़कों की भी फौरी मरम्मत की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जायज मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ गुल मोहम्मद लाशारी, NTN न्यूज, जेकाबाद। जदीद दौर, रिवायती जायका। मशीनों के दौर में भी गुड़ की तैयारियों का कदीम अंदाज बरकरार। देहातों में गुड़ की तैयारी की रिवायती बेले और भट्टियां आज भी मरकज़ निगाह बन गई हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज के जदीद दौर में जिस तरह से केमिकल से चीज़ें तैयार की जाती हैं, वहीं गुड़ अपने रवायती अंदाज से तैयार किया जाता है। गन्ने को पहले लाया जाता है, उसके बाद उसको उसका रस निकाला जाता है, उसको एक जो कढ़ा होता है जिसके नीचे आग जलाई जाती है, उसके ऊपर उसकी रस डाल के पकाया जाता है, फिर लकड़ी के बॉक्स में डाला जाता है और फिर जाके गुड़ तैयार होता है। मेरे साथ इस वक्त जो गुड़ बनाने वाले मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। इंदे विच असां जरा ना गुड़ बनाने, इंदे विच असां जरा ना मेवाजात जरा ना ड्राई फ्रूट सट के पहले सब के ने पहले दूध, उनदे बाद देसी घी, उनदे बाद ड्राई फ्रूट जे मकसद मेवाजात सारे इंदे सट के ये सुगात वास्ते लोग सब डिमांड करन, इतो असां उनको बढ़ा के देने, वो वाला अपने दोस्तों को गिफ्ट करन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल किया जाता है, दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है और जो खरीदने वाले शहरी हैं वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बतौर सुगात पर गिफ्ट भी करते हैं। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।